Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you guys are doing well. So let's continue with the series where we are actually solving the CAT 25 slot questions based on LRDA, right? So now we'll be starting with slot 2. अभी तक हमने slot 1 के सारे questions cover कर लिए हैं. If you have not been following this particular series, just go back to the previous videos, right? And just go ahead and solve all the questions, ठीक है? So let's start with slot 2. First question, first set. So we'll begin with this hoop wala set, which actually came, and this was a very easy set, I would say. इस particular paper में everyone would have written this paper, definitely would agree on that part. This was the like easiest set of this particular slot, right? So अगर आपने इसको पहले कभी solve नहीं करा है, I would definitely recommend you just pause this video right here itself, try this set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution, right? Chalo फिर. So I hope you would have tried this particular set. Now let's read this, let's understand this, and let's try to solve this particular scenario. So what do we have? There are 6 spherical balls B1, B2, B3, B4, B5 and B6 and 4 circular hoops H1, H2, H3 and H4, right? So 6 balls है अपने पास B1 से लेके B6 तक, and then we have 4 circular hoops. Hoops is like, for example, basketball का hoop हो गया, for example. You put a ball there, right? And then it goes into that basket. Kind of that hoop. So 4 circular hoops H1, H2, H3 and H4. Each ball was tested on each hoop once by attempting to pass the ball through the hoop. So ball को हमने hoop में डाला and we'll just test whether that ball passes through the hoop or not. अब बिल्कुल कॉमन सेंस अपना कहता है कि वो हुप से पास करेगा, कब करेगा वो कंडीशन, बट इट इज वेरी एक्सप्लिसिटली रिटन हियर आल्सो. लेट्स जस्ट रीड दैट. इफ द डायमीटर ऑफ द बॉल इज नॉट लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द हुप, तो बॉल का डायमीटर अगर हुप के डायमीटर से बड़ा नहीं है, राइट, इन दैट सिनेरियो द बॉल पासेस थ्रू द हुप एंड मेक्स अ पिंग. सो पिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, बॉल अगर हमारा हुप से पास हो गया तो हम क्या बोलेंगे, इट मेक्स अ पिंग. क्लियर? Any ball having a diameter larger than that of the hoop gets stuck on that hoop and does not make a ping. Fine, any ball having a diameter larger than that of the hoop gets stuck on the hoop and does not make a ping. तो बॉल का डायमीटर मान लो ये है और हुप का डायमीटर उससे कम है, तो ऑब्वियसली बॉल जो है वो पास नहीं करेगी. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? ऑल्सो यहाँ पे इक्वलिटी का कोई सिचुएशन नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि अगर इक्वल हुआ तो वो अटक जाएगी. दैट एब्सोल्युटली मेक्स नो सेंस फॉर दिस पर्टिकुलर सेट. ठीक है? So this, I think, is on the lines of inequalities. This is less than this, this is less than this, this is less than this. So we'll have to just tackle all the conditions given and make different kinds of inequalities based on the conditions given, right? Chalo, let's start with this. So we have only 4 points. Let's read them. Let's just understand how we'll be structuring that. So पहला point क्या लिखा है? B1 and B6 each made a ping on H4, but B5 did not. अब एक काम करते हैं, just to keep a track of all of this information. Just to keep a track of all of this information, I'll draw a small grid for myself. ठीक है? एक बना लेते हैं balls का और एक बना लेते हैं hoops का. So let's do B1. Let's use a lighter color. So B1 to B6, right? So B1, B2, B3, B4, B5 and B6. So we have 6 balls and then we have 4 different hoops, H1 to H4. So H1, H2, H3 and H4. So ये grid में just keep a track कि कौन सा ball किस hoop से pass हो रहा है, नहीं pass हो रहा. I'll just use this grid also along with those inequality, right? जो conclusion है हमारे पास. So first हमारा point क्या था, B1 and B6 each made a ping on H4 but B5 did not. So B1 and B6 ने H4 से पास किया. पिंग किया मतलब पास किया. So B1 ने H4 से पास करा, B6 ने H4 से पास करा, but B5 did not. B5 ने H4 से पास नहीं करा. ये हमारा पहला कंडीशन है. नाउ व्हाट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज टू बी डन इज, ये जो कंडीशन दिया हुआ है ना, इसके बेस पे हम इनइक्वालिटी लिख सकते हैं बिटवीन द बॉल्स डायमीटर एंड दैट रिस्पेक्टिव हुप, जिसके अराउंड भी कंडीशंस वगैरह गिवन है. जैसे कि अगर मैं अपना वो पहला वाला पॉइंट देखूं,
तो पहले वाले पॉइंट में क्या था कि B1 एंड B6 H4 से पास कर रहे हैं, B1 एंड B6 H4 से पास कर रहे हैं, तो दैट शुड मीन कि अगर मैं इनइक्वालिटी लिखूं तो आई कैन जस्ट सिंपली राइट इट समथिंग लाइक दिस कि B1 एंड B6, कॉमा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि B1 एंड B6 के डायमीटर का कंपैरिजन अभी फिलहाल में नहीं कर सकता, सो आई जस्ट यूज अ कॉमा टू रिप्रेजेंट कि B1 एंड B6 ये दोनों जो बॉल का डायमीटर है, because they are passing through H4, so they will definitely be less than H4. You can represent it this way. ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली जाके अगर आप अपने क्वेश्चंस देखो तो कंपैरिजंस ही करना है, रिलेटिव कंपैरिजंस आपको इवेंचुअली करना है इसमें. सो B1 एंड B6 वुड बी लेस देन H4. एक तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, राइट right? दूसरा ये भी है कि भाई B1 एंड B6 H4 से तो पास हुए, तो दे आर लेस देन H4, बट B1 एंड B6 but B5 did not pass through H4, right? So B5 did not pass through H4. Now ये जो कंडीशन है इसका क्या मतलब निकलेगा कि B5 did not pass through H4, so that should mean कि B5 का जो डायमीटर होगा वो H4 के डायमीटर से ऑब्वियसली क्या होगा, बड़ा होगा. So I can write B5 का डायमीटर ग्रेटर देन H4, तभी B5 हमारा H4 से पास नहीं हुआ. हो गया, पहला कंडीशन हमारा डन है. सो B1 B6 बोथ आर लेस देन H4, H4 इन टर्न इज लेस देन B5, पहला कंडीशन. नाउ दूसरा कंडीशन अपना क्या है, लेट्स रीड द सेकंड कंडीशन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about the relative sizes of the balls is not necessarily, sorry my bad, second conditions, my bad, second condition, B4 made a ping on H3 but B1 did not. पहले तो मैं इस चीज को टेबल में अगर नोट डाउन करूं, सो B4 मेड अ पिंग ऑन H3, B4 on H3, B4 on H3, बट B1 डिड नॉट. सो B1 ने H3 में पिंग नहीं करा है, B1 ने H3 में पिंग नहीं करा है. अब ये तो मेरे को मिली कंडीशन. इसको अगर मैं इनइक्वालिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं तो मेरा क्या कंडीशन आएगा कि B4 H3 से पास किया. सो आई कैन राइट इट, B4 H3 से अगर पास कर रहा है तो B4 वुड बी लेस देन H3, है ना. B4 वुड बी लेस देन H3, तभी वो उसे पास किया है. बट B1 डिड नॉट पास थ्रू H3, B1 डिड नॉट पास थ्रू H3 का मतलब क्या हो जाएगा कि B1 वुड बी ग्रेटर देन H3, राइट. B1 वुड बी डेफिनेटली ग्रेटर देन H3, तभी B1 हमारा H3 से पास नहीं करा. ये हो गई तुम्हारी दो इनइक्वालिटी, ठीक है. देन कम्स अ थर्ड, ऑल बॉल्स एक्सेप्ट B3 मेड पिंग्स ऑन H1. पहले हम इसमें नोट डाउन कर लेते हैं, ऑल बॉल्स एक्सेप्ट B3 मेड पिंग्स ऑन H1. सो B3 को छोड़ के सारी बॉल्स H1 से पास करी. टिक 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 टिक, और यहां क्या आ गया, क्रॉस आ गया. तो अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं कि भाई B3 हमारा H1 से पास नहीं कर रहा है, बाकी सारी बॉल्स कर रही है, ठीक है. तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, सो B3 वुड बी ग्रेटर देन H1, राइट, बिकॉज B3 को छोड़ के ऑल बॉल्स एक्सेप्ट B3 मेड पिंग्स ऑन H1, तो मतलब H1 कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा होगा, राइट, या बहुत छोटा होगा वैसे. सो B3 को छोड़ के सारी बॉल्स हमारी पास करेंगी. सो आई कैन एक्चुअली गो राइट कि भाई B1 जो है या B2 जो है या फिर B4 5 एंड 6 ये सारे, है ना, B4 B5 B6, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इनके बीच में कोई रिलेटिव कंपैरिजन नहीं है. ये सारी बॉल्स ने H1 से पास करा है, राइट. सो दे वुड डेफिनेटली बी लेस देन H1, ठीक है, तभी वो पास कर रही हैं. सिर्फ ये सारे हमारे H1 से छोटे हैं, सिर्फ प्राइमरी कंडीशन क्या है कि B3 जो है वो H1 से बड़ा होगा. सो H1 से बड़ा होगा तुम्हारा क्या, B3, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है. एक ही बात है दोनों, राइट, बट H1 से बड़ा सिर्फ B3 है, बाकी सारे जो हमारे बॉल्स हैं वो सारे सारे हमारे क्या है, H1 से छोटे हैं. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये भी कंडीशन हो गई. एंड देन वी हैव द लास्ट, none of the balls except B2 made a ping on H2. none of the balls except B2, तो सिर्फ B2 ने H2 पे पिंग करा, बाकी किसी ने भी पिंग नहीं करा है. सो B2 को छोड़ के हर जगह यहां क्या आ जाएगा आपका, क्रॉस. तो B2 ने सिर्फ H2 से पास करा है, तो B2 ने अगर H2 से पास करा है तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई B2 जो होगा दिस विल बी लेस देन H2, तभी वो पास हुआ होगा. सिर्फ B2 ही H2 से पास किया होगा, तो
B2 वुड बी लेस देन H2। बाकी सारे जो हमारे हैं, बाकी सारे जो हमारे बॉल्स है, B2 को छोड़ के B1 B3 B4 B5 B6 सारे, वो सारे हमारे H2 से बड़े होंगे, तभी वो H2 से पास नहीं किए होंगे। एंड नाउ वी आर प्रीटी मच डन विद ऑल द कंडीशंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडीशंस डन। परफेक्ट। नाउ अब क्या करें, अब हमारे पास हो गए सारे कंडीशंस डन। दो इनइक्वालिटी ये है, एक इनइक्वालिटी है और एक इनइक्वालिटी है, हर एक कंडीशन से एक इनइक्वालिटी निकली। तो अब हमारा टाइम आता है कि हम इन इनइक्वालिटीज को क्या करें, मर्ज करना है। राइट, यू हैव टू जस्ट कंबाइन द इनइक्वालिटी, जैसे आप क्वांट में करते हो ना, वैसे ही कुछ करना है। सो यू हैव टू फाइंड अ कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट कैसे फिगर आउट करें, देखो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं अपना पहला वाला रिलेशन देखो और दूसरा वाला रिलेशन देखो, तो B1 कुड एक्ट एज अ कॉमन पॉइंट। B1 जो है हमारा कॉमन है, जैसे कि क्या है, मुझे पता है कि भाई B4 से बड़ा H3 है, H3 से बड़ा B1 है, सेकंड कंडीशन में था। एंड मुझे यह भी पता है फॉर श्योर कि B1 से बड़ा H4 है, तो आई कैन राइट इट दिस वे कि B1 से बड़ा अपना क्या है, H4 है, एंड H4 से बड़ा क्या है हमारा, B5 है। तो ये दोनों कंडीशन मर्ज करके एक इनइक्वालिटी हमारी कंबाइंड में बन जाएगी, जिसमें 5 एंटिटीज ओवरऑल आ रही है। ठीक है, हाँ बस ये है कि इसमें जैसे जो B6 था वो H4 से छोटा था, तो इस इनइक्वालिटी में जो ये कंटिन्यूस आपकी पूरी चेन सी चल रही है, H4 से छोटा हमारा होना चाहिए, बस याद रखना B6, है ना, H4 से छोटा होना चाहिए हमारा B6। तो इधर कहीं हमारा इवेंचुअली क्या आने वाला है, B6। अब किधर आएगा वो मेरे को फिलहाल नहीं पता, H4 के पीछे कहीं पे H4 से छोटा हमारा होगा इवेंचुअली B6। दो कंडीशन आपने ऐसे मर्ज कर ली। व्हाट एल्स कैन यू डू नाउ, अब नोटिस करो, तो मुझे ये पता है इस कंडीशन और इस कंडीशन को देख के कि H1 इन सबसे बड़ा है ना, B1 B2 B4 B5 B6 इन सबसे बड़ा हमारा क्या है, H1 है। सिर्फ H1 से बड़ा क्या है हमारा, B3। तो अगर आप नोटिस करो कहीं ना कहीं फिर ये जो हमारा H1 है, ये टुवर्ड्स द राइट एंड आएगा, टुवर्ड्स द राइट एंड आएगा। जैसे आप यहाँ पे B4 है, यहाँ पे B1 है, यहाँ पे B5 है, तो मुझे पता है कि B5 से भी बड़ा H1 है ना, यहां से तो दिख ही रहा है ना, B5 से भी बड़ा H1 है। तो इधर कहीं पे हमारा इवेंचुअली क्या आने वाला है, ये दैट इज H1। तो H1 हमारा उस साइड जाने वाला है, टुवर्ड्स द राइट एंड। अब कहां पे आएगा एग्जैक्टली exactly? उसको देखने से भी पहले अगर आप ये भी देख लो, तो इससे आपको समझ में आएगा, जैसे H2 से छोटा सिर्फ B2 है, बाकी सारे चाहे वो B1 हो, चाहे वो B3 हो, चाहे वो B4 हो, चाहे वो B5 है, कुछ भी अगर आप नोटिस करो, B1 B3 B4 B5 B6 सारे ही हमारे H2 से बड़े। तो H2 से सिर्फ अकेला एक ही हमारा ये बॉल छोटा है डायमीटर उसका, दैट इज B2। तो कहीं ना कहीं हमारा H2 जो होगा वो टुवर्ड्स द लेफ्ट मोस्ट एंड आएगा, इधर बीच में कहीं नहीं होगा, क्योंकि देखो B4 यहां है, तो इस चेन में B4 के भी इधर आने वाला है, इस चेन में भी B4 के इधर इवेंचुअली हमारे आने वाला है क्या, ये H2। तो अब इसको और इसको हम आराम से यहाँ पे, एक को हम इसको राइट एंड में डाल सकते हैं और ये वाला हम टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड डाल सकते हैं। तो अब मुझे पता है कि डेफिनेटली कि भाई अगर मैं नोटिस करूं तो H2 जो होगा वो B4 के लेफ्ट में आने वाला है, और बिकॉज B4 से छोटा होगा, है ना, B4 से छोटा है H2, तो ऐसा ही हमारा इनइक्वालिटी बनेगा, यहाँ H2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा B1 आ जाएगा, क्योंकि ये वाली जो चीज है वो उधर जाने वाली है, जो ये है, जैसे H1 जो है ऑब्वियसली फिर वो इधर आने वाला है, क्योंकि H1 जो है वो डेफिनेटली B5 से भी बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली जो H2 था वो सारे H3 H4 और H1 सबसे पीछे आएगा। ठीक है, सो ये जो दो बची हुई चीजें थी वो यहाँ पे फिट हो जाएंगी, और ये जो चीज थी दैट इज H1 और उससे बड़ा B3, ऑब्वियसली फिर वो इसी ऑर्डर में आएगा, H1 और उससे बड़ा क्या, B3। तो नाउ इफ यू नोटिस हमने सारे हुप्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिए है कि भाई H2 है, H3 है, H4 है और H1 है, सारे हुप्स रिप्रेजेंटेड है। बॉल्स अभी आपको इस पूरी चेन में एक बस नहीं दिखेगी, एक्सेप्ट फॉर B6 एवरीथिंग विल बी देयर, जैसे B1 है, B4 है, B1 है, B5 है और वहां पे हमारा B3 भी है। सिर्फ B6 के ऊपर कंडीशन क्या है कि B6 हमारा H4 से पीछे आना चाहिए,
B6 जो है H4 से पीछे आपका आना चाहिए। और एक्चुअली में इस डायग्राम से भी मेरे को ये भी दिख रहा है कि B6 H2 से तो पास नहीं हुआ है ना? तो B6 जो है, या ऐसे देख लो तो B6 जो है वो H2 से तो बड़ा होगा ही होगा। तो H2 से बड़ा होगा मतलब जो B6 है वो यहां से लेके यहां के बीच में कहीं पे भी आ सकता है ना? H2 से उसको बड़ा होना है और H4 से उसको छोटा होना है। इस रेंज में जो हमारा B6 है यहां पे कहीं पे भी फिलहाल वो आ सकता है। ठीक है, बस दैट्स इट। तो H3 के पहले भी आ सकता है, H3 के बाद भी आ सकता है। तो H3 से पास भी कर सकता है, H3 से नहीं भी पास कर सकता है। दैट इज समथिंग नाउ वी कैन एक्चुअली कंक्लूड। तो अब हम चाहें तो अब अपनी हम टेबल भी फिट कर सकते हैं। जैसे B6 को छोड़ के हर चीज हम यूनिकली फिगर आउट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। B1 का हमारा सॉर्टेड था, B1 ने टोटल 2 पिंग्स मारे, 2 हुप से पास हुआ, सो टोटल नंबर ऑफ पिंग्स बाय द B1 बॉल वुड बी 2। B2 का देख लो, इस डायग्राम से पता चल जाएगा। तो B2 का है, B2 इज, B2 का क्या, B1, sorry, this was actually, oh, this was B2, sorry, this was B2 है ना, B2 लेस देन H2। सो B2 का क्या हुआ, B2 हमारा सबसे छोटा है ना, B2 हमारा सबसे छोटा है। तो यहाँ पे सबसे ही क्या करेगा, वो पास करेगा, है ना? B2 is less than H2 also, less than H3 also, less than H4 also, less than H1 also, so सबसे पास करेगा 4 pings for B2। B3 देखो B3 क्या है, सबसे बड़ा है, मतलब H1 से भी बड़ा है, H4 से भी बड़ा है, H3 से भी बड़ा है, H2 से भी बड़ा है। तो इट विल नॉट पास, इट विल नॉट पिंग थ्रू एनी ऑफ द हूप्स। तो यहाँ पे सब में ही क्रॉस आएगा, इसका टोटल नंबर ऑफ पिंग्स वुड बी 0। B4 अगर देखो तो B4 हमारा यहाँ है, तो B4 सिर्फ हमारा H2 से पास नहीं करेगा। तो B4 सिर्फ H2 से पास नहीं करेगा, बाकी B4 हमारा H4 से भी पास इवेंचुअली करेगा। सो दिस इज 3 पिंग्स। B5 अगर मैं नोटिस करूं तो B5 सिर्फ, अगर मैं देखूं तो B5 जो है हमारा H1 से छोटा है ना? B5 सिर्फ हमारा H1 से छोटा है ये। बाकी B5 जो है 4, 3 और 2 से सबसे बड़ा है। 4, 3 एंड 2 किसी से भी पास नहीं करेगा, है ना? तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पिंग्स वुड बी 1। एंड फाइनली B6 को देखो, तो B6 के लिए मैंने बोला था कि भाई B6 जो है, अगर मैं H3 के करस्पॉन्डिंग देखूं, है ना, B6 को H3 के करस्पॉन्डिंग, तो H3 के बाद भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। अगर H3 से इनइक्वालिटी में पहले आया तो हम बोलेंगे H3 से छोटा है तो पास कर जाएगा। अगर H3 के बाद आया, है ना, H3 के अगर बाद आया और H4 से ऑब्वियसली पहले, तो H3 से पास नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा टिक भी आ सकता है और यहाँ पे हमारा क्रॉस भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पिंग्स फॉर B6 वुड बी आइदर 2 और 2 + 1 3। सो या तो 2 होगा या तो हमारा 3 होगा। That's it. And now we have all the information with us and we can actually go ahead and target all the questions. First क्या था? What was the total number of pings made by B1, B2 and B3? B1, B2, B3 के total number of pings would be 0 to 4. That would be 6. Second, which of the following statement about the relative sizes of the balls is not necessarily true? ठीक है, not necessarily true मेरे को देखना है। तो B4 less than B5 less than B3, B4 less than B5 less than B3 is definitely correct। तो not necessarily true ढूंढना है। तो पहला तो हमारा आंसर नहीं हुआ क्योंकि ये तो डेफिनेटली ट्रू है। B1, B6, B3 देखो यही होगा। B1 लेस देन B6 जरूरी नहीं है, राइट? B1 लेस देन B6 लेस देन B3। अब B6 जरूरी नहीं है ना कि इस बीच में फिट हो ही हो, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, एंड हेंस दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Third, which of the following statements about the relative sizes of the hoops is true? Hoops was straightforward है, 2, 3, 4 and 1 increasing order, 2, 3, 4, 1 increasing order, 2, 3, 4, 1। Option C is the right answer। Fourth, what best can be said about the total number of pings from all the tests undertaken? इसका कॉलम का एडिशन देखना है। 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 plus either 2 or 3, so either 12 और 13। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेट, है ना? इजी था ना, सिंपल। आपको बस एक इनइक्वालिटी इसमें से जज करनी है
we do have some possibilities and inequality merging definitely, but cat के perspective से definitely एक doable set है, करना चाहिए था, and I hope you would have definitely got this correct also. Before we end, right, Zenith batch is already up and running. Currently syllabus का मैं update दे देता हूँ. If anyone wants to join this particular batch right now, currently we are doing circular arrangement right in this particular batch. तो अभी सिर्फ अरेंजमेंट ही हुआ हमारा है पहला टॉपिक. तो इफ समवन वांट्स टू जॉइन दिस पर्टिकुलर बैच, बहुत कुछ हमारा छूटा नहीं है, एंड एवरीथिंग व्हिच इज एक्चुअली covered till now can be done through the recorded lectures also. वो भी आपको रिकॉर्डिंग में मिलती है, ठीक है. सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस पर्टिकुलर बैच. बहुत ज़्यादा लेट नहीं करने का फायदा है. एंड ऑल्सो if you want to join a complete OMITS batch, right? So we have this particular batch. This starting from 20th of May, right? Currently the enrollments are going on, and if you have any queries with respect to this particular batch, you have the numbers of the टीम. इन नंबर्स पे आप कॉल करके, इन एनी ऑफ दिस नंबर्स कॉल करके आप ज़्यादा डिटेल्स भी ले सकते हो. द डिटेल्स आर ऑल्सो देयर ऑन द वेबसाइट. यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट. Right, so I hope you understood today's set. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you guys. Bye.